Good morning, students. Today we will continue our chapter Electoral Politics. In the previous video, we have discussed about what makes the election democratic in India. In the previous video, we have discussed the important feature which makes the election democratic in India, which is Independent Election Commission. Now in this video, we will discuss the other features which make elections in India democratic. First is popular participation and second is acceptance of election outcome. So let us start with popular participation. Students, popular participation means the quality of election. Means the participation of peoples in elections. लोगों का participation कैसा है? क्या वो excited है elections को लेकर? क्या वो उसमें participate करना चाहते हैं? This is called the quality of election or the participation of the peoples in India. Students, in India, people's participation is measured by voters turnout figures. Voter turnout figure indicates the percentage of voters who actually cast their votes. For example, अगर हम माने कि in India 100 people are eligible to cast their vote. Suppose 100 people are eligible to cast their vote, and out of 100, 50 people cast their vote. Okay, तो it means the voter turnout figure कितना हुआ? 50%. एक देश में कितने लोग एलिजिबल हैं और कितने अपनी वोट देते हैं, ये है वोटर टर्नआउट फिगर्स. ओके, अगर हम इंडिया और यूरोपियन कंट्री को कंपेयर करें तो इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप. इंडिया में ये टर्नआउट या तो स्टेबल है या फिर ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज. ओके, दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि पीपल आर एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, क्वालिटी ऑफ इलेक्शंस, बिकॉज इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन देन द रिच. रिच लोगों के कंपैरिजन में पुअर लोग इलेक्शंस में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको इलेक्शन से, अपनी चॉइस से गवर्नमेंट बनाने पर ज़्यादा विश्वास है. ओके, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉमन पीपल फ्रॉम इलेक्शन आर वेरी हाई. यस, द कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शंस they can bring pressure on the political parties to adopt policy and programs in their interest. They can also feel that their vote matters in the way things are run in the country. Yes sir, आप कह सकते हो कि इंडिया में आम आदमी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन से. वो प्रेशर बना सकते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर रहे हैं कि उनके इंटरेस्ट के हों. जिस पार्टी को वो चुनेंगे वो उनके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी प्रोग्राम्स पर काम करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा. दैट इज़ वाई पीपल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स in election related activities has been increasing over the years. दिन पे दिन election activities में लोगों का participation बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अगर हम एग्जाम्पल लें, ड्यूरिंग 2004 elections, अगर हम उन elections की बात करें तो more than 1/3 voters took part in a campaign related activities and more than half of the people identify themselves as being close to one or the other political party. 1 out of every 7 voters is a member of a political party. लोग बढ़ चढ़कर कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हैं, अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ लेते हैं. हम कह सकते हैं कि 7 में से एक जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है.
Okay, and this proved that the interest of voters in election related activities has been increasing over the years. Now, next feature which makes elections democratic in India, expectance of election outcome. Yes, final test is outcome itself. Means the outcome of India's elections speak for itself. जो रिजल्ट इलेक्शंस के बाद आता है वो खुद ही बोलता है कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इंडिया में हुए हैं या अनडेमोक्रेटिक हुए हैं. रिजल्ट अपने आप शो कर देता है. ओके, एंड द रूलिंग पार्टीज routinely लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. यस, जो रूलिंग पार्टी है, ओके, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी. तो हमेशा रूलिंग पार्टी नहीं जीतती है, कभी अपोजिशन जीतती है, कभी रूलिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2014 तक कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद बीजेपी आ गई, तो पहले कांग्रेस जीती, फिर बीजेपी जीती, कांग्रेस हारी, फिर बीजेपी हारी, ये सब चलता रहा. ये प्रूफ करता है कि इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक. ओके, अनडेमोक्रेटिक होते तो एक ही पार्टी हमेशा जीतती रहती. नेक्स्ट है, इन द यूएस एंड इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज इन इलेक्शन. अगर हम कंपैरिजन करें यूएस का, तो जो वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एक बार जब जीत जाते हैं तो उनका इलेक्शन हारना, उनकी पॉसिबिलिटी जो है हारने की वो कम हो जाती है. रेयरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन यूएसए लूज इन इलेक्शन. लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें, हाफ ऑफ सिटिंग ऑफ एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शंस. हम देखते हैं कि जो हमारे एमएलएज और एमपीज बने हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शन, उसमें जो एमएलएज और एमपीज एक बार जीत जाते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में वो सिटिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाए. दिस प्रूफ दैट इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. हमें देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट अपने पैसे के दम पर वोट्स को खरीदने की कोशिश करते हैं, अपने क्रिमिनल कनेक्शंस के थ्रू इलेक्शंस को जीतने की कोशिश करते हैं, बट ऑफन दे लूज द इलेक्शंस. दिस ऑल्सो प्रूव दैट द इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक. अगर अनडेमोक्रेटिक होते तो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले जो कैंडिडेट्स हों या जो अपने पैसे की पावर पर वोट्स को खरीद रहे हैं वो भी जीत जाते. ओके, लास्ट, barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party. इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, ये प्रूफ होता है कि जब आउटकम यानी कि रिजल्ट आता है तो रिजल्ट accepted by both the ruling party and the opposition. Means the people verdict accepted by the defeated party also. लोगों की चॉइस, जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, वो रूलिंग पार्टी भी एक्सेप्ट करती है और अपोजिशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है. मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई इलेक्शंस को रीपोल कराए या डिस्प्यूट खड़ा करे, ऐसा बहुत ही बिल्कुल चांस ख़त्म है. इलेक्शंस के रिजल्ट को दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लोगों की चॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द टॉपिक्स, popular participation and acceptance of election outcome. After listening this video, you will read the topic with the help of your book NCERT. Okay, thank you student, have a nice day.